आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। So as I told you in this chapter, in the start of this chapter, that this chapter has three parts. Okay, the first part is calculation of magnetic field, and the second part is calculation of force, or you can say force is again divided into two parts. So in this, now we are going to study the calculation of magnetic force. You can say force, calculation of magnetic force. Now this is divided into two parts. One is magnetic force on a charged particle and magnetic force on a current carrying wire. Okay, so force on charged particle and force on wire, we can say that a current carrying wire. These two is our main objective, and later after that, once few topics are there, small topics like magnetic moment we'll discuss, and we'll discuss the principle of galvanometer. I think we have already discussed, but I'll just brief you. So that's what is our objective. So let's start with the topic magnetic force on a current carrying wire. So let's understand it. Magnetic force on a, okay, not on a moving charged particle, on a moving charged particle. So our main focus here is magnetic force, but obviously question might come general force also, like just force on a moving charged particle. If you just leave this term, if you just focus on this term, force on a moving charged particle. So this force on a moving charged particle is given by one law, or the force is called Lorentz force. Okay, so some of you might have heard on general charged particle the Lorentz force acts. So we are just studying its component. Like actual force on any moving charged particle is two types of force. One is electrical force and one is magnetic force, right? Actual force on any moving charged particle or any charged particle will have two component, and that is called Lorentz force. Okay, one is called electrical force and one is called magnetic force. And the electrical force, you have studied that it is given by Q times electric field, and magnetic force will be given by Q times V cross B. So this is the general formula for the Lorentz force, or force on any charged particles. So this you have to remember. Now our main focus will be this force, and this is called magnetic force. So this magnetic force also is come out to be the cross product of velocity and magnetic field vector. Okay, or in short, if we talk about just magnetic force, so magnetic force we can say that FB, or in this chapter onwards, if simply we mention F, we will assume that we are talking about magnetic force only. We will not be considering the electrical force unless until it is electric field is particularly given, right? So the magnetic force will be Q into V cross B, which can be also written as BQV sin theta. अच्छा, मैं फिर से हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लास होती है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ मेरे को इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मैं साउथ इंडिया में पढ़ा रहा हूँ, तो वही फ्लो है, भूल जाता हूँ। ऑलराइट, सो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है
थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग शाहबाज। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो बी क्यू वी साइन थीटा है, बी क्यू वी साइन थीटा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको मैग्नीट्यूड वाइज ही याद रखना है। जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि ये सब फॉर्मूला जो भी है मैग्नीट्यूड वाइज याद रखो और डायरेक्शन आप अदर अलग तरीके से निकालना सीखो, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है या फिर हाँ राइट हैंड थंब रूल मेथड है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट जो तरीका होता है। एक वेक्टर की तरफ अपनी 4 फिंगर्स रखो, सपोज वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी की तरफ कैमरे में दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा होगा शायद। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर करो, ये ध्यान रहे ये 4 फिंगर्स जो है ये पॉइंट होना चाहिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब सेम है जो मैंने प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड निकाल के समय बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, सेम वही लॉजिक है। तो V और इसको मूव करना है अपने पाम की तरफ, इसके तरफ मूव करना है, ऐसे मूव करना है, ऐसे उल्टा नहीं मूव करना है एवरीबॉडी। सो V क्रॉस B, इसको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के तरफ मूव करना है। तो देखो वेलोसिटी मेरी राइट डायरेक्शन में, कैमरा में लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन आप एज्यूम करो राइट डायरेक्शन में, सपोज मैं ऐसे करूँ तो दिखेगा नहीं, ठीक है। आप खुद से इसको ट्राई करो, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो स्क्रीन में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी आपके भी राइट होगा। कैमरा में मेरा लेफ्ट दिख रहा है, तो 1 मिनट आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो डायरेक्शन को। तो मैं V के तरफ पॉइंट कर रहा हूँ अपना 4 फिंगर्स और मेरे को दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा और नीचे मैं डाउन करूँगा। मैं ये 90 डिग्री मूवमेंट करूँगा अपने 4 फिंगर्स को। जो डायरेक्शन जो थंब की आ रही है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फोर्स होगा। कोई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भूल जाना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट तरीके से हम हमेशा फोर्स निकालेंगे, ये बहुत आएगा इसलिए आगे भी आएगा। ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये तो डायरेक्शन बहुत ही आएगा, तो आपको याद रखना है। क्लियर है। तो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है देख लो सब लोग, थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर थंब जा रहा है। दैट मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी इनटू द प्लेन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। सपोज बाय चांस आप ये विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए एक अल्टरनेट मेथड है, आई कैप जे कैप और के कैप मेथड। तो वेलोसिटी आई कैप है तो आई कैप क्रॉस और मैग्नेटिक फील्ड हमारा माइनस जे कैप है, तो आई कैप क्रॉस और माइनस जे कैप आप कर लो। तो आई थिंक ये पता होगा सबको, तो ये पता होना भी चाहिए। तो आई क्रॉस माइनस जे कर लो तो ये आपकी आ जाएगी माइनस के आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीका है वेलोसिटी निकालने का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। किसी का फ़ोन आ रहा है, ऑलराइट, ठीक है एवरीबॉडी, दिस इज़ क्लियर। अब चलो इस फोर्स के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। एग्जैक्टली फोर्स क्या है और जब ये चार्ज पार्टिकल पे लगता है तो चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या होती है, ठीक है। अब जो हमारा ये फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या निकल के आता है, हम क्या इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में कुछ बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन में एक बात तो क्लियर है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी फोर्स के। वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज़ वन। एक चीज़ है यहाँ पे।
और फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। चलो ये समझते हैं, यदि किसी तरह हम स्पीड कांस्टेंट कर ले पार्टिकल की, यदि सपोज हम मान के चले कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है समहाउ, यदि हम कर ले मैनेज, हम ऐसे चार्ज पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल का समहाउ हम स्पीड कांस्टेंट करके उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजें, तो यदि हमारा स्पीड कांस्टेंट है और जो हमारा फोर्स है हमेशा उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होगा फिर ये किस तरह का मोशन है। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन करेगा हमेशा? एवरीबॉडी टेल मी। ये दोनों कंक्लूजन मतलब इस दोनों फैक्ट से और इन दोनों पैरामीटर से क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस विल ऑलवेज डू अ सर्कुलर मोशन? यदि किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, ओके, और फोर्स हमेशा उस स्पीड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल का जो पाथ होगा ना वो सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा, और जैसे ही सर्कुलर मोशन आया तो उसकी रेडियस भी होगी। और ये किस तरह का सर्कुलर मोशन है? सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है और सिर्फ एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होता है जो कि सेंटर के टुवर्ड्स होता है, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती है। तो उसमें दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जिससे स्पीड बढ़ता है या घटता है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे वैसा केस जहाँ पे स्पीड हमारा कांस्टेंट है। तो जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि किसी को डाउट है तो बोलो कि नहीं सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए, कोई और भी पाथ हो सकता है। एनीबॉडी वांट टू डिस्कस? ठीक है ना, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो इसकी रेडियस निकाल सकते हो सब लोग। अब ये सिचुएशन दे दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, इसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल की। जो चार्ज पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकालने का आपको कोई फार्मूला वगैरह याद कर लो तो ठीक है, मगर इनकेस फार्मूला भूल भी जाओ तो मैं जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उसको बस आपको याद रखना है। और एक्सप्रेशन काफ़ी सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के। या फिर ऐसे लिखें, पहले मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्सप्रेशन यदि आप याद रख लोगे, और काफ़ी मतलब लॉजिकल ये एक्सप्रेशन है कि जब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना उसके सर्कुलर मोशन के लिए। कोई सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई फोर्स जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराता है उसी को हम बोल देते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो फोर्स टेंशन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, कुछ भी फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप सारी पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी रेडियस कर सकते हो कैलकुलेट, इसकी टाइम पीरियड कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कर सकते हो, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कर सकते हो। तो चूँकि ये सर्कुलर मोशन में है तो ये सब पैरामीटर्स आपको याद होना चाहिए। मतलब याद कर लोगे तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बस ओमेगा, इसकी टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी रेडियस और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारे पैरामीटर्स हैं 1 2 3 4। तो बारी बारी से इन सब पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये सारे पैरामीटर्स सिर्फ एक सिंपल फार्मूला, इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है सबको?
तो मैं मैग्नेटिक फोर्स को लिख देता हूँ यहाँ पे BQV। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्कुलर पाथ होगा हमें मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी से। यदि परपेंडिकुलर नहीं रखते तो क्या होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए कोई और भी पाथ ये मूव नहीं करे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो वेलोसिटी यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो कुछ उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो सकता है। तो वैसे केस में पाथ सर्कुलर प्लस समथिंग होगा। सर्कुलर तो होगा ही और साथ में कुछ कोई और पाथ भी हो सकता है जिसको कि हम हेलिकल वगैरह बोलते हैं, अदर टाइप्स ऑफ पाथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि चलो मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ है और पार्टिकल की वेलोसिटी सो V क्रॉस B। हाँ, मैं अब सेंटर पे आ रहा है फोर्स, आप देख लो यहाँ पे सब लोग। वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा हर जगह, आप देख लो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वेलोसिटी है हमारा और फोर्स हमारा परपेंडिकुलर आएगा। तो ऐसा सिचुएशन आता जाएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर है तो V क्रॉस B फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ BQV लिख सकते हैं। BQV इज द फोर्स एक्टिंग, क्योंकि थीटा जो है हमारा 90 डिग्री है। तो BQV को हम किसके इक्वेट कर देंगे, mv²/r। तो यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आ जाएगा, V कैंसिल हो गया। तो ये रेडियस का आपको फॉर्मूला याद रख सकते हो, mv/bq, ये हमारा रेडियस। और टाइम पीरियड की मैं निकालूँ तो टाइम पीरियड का होता है 2πr वेलोसिटी, सर्कमफ्रेंस बाय वेलोसिटी। तो 2πr की वैल्यू आप डाल दो mv/bq और बाय वेलोसिटी, सो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो होता है, जो वेलोसिटी पे यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, सो 2πm/bq। तो ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इस तरह फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BQ/2πm। और जो ओमेगा है, ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड और 2π फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी BQ/m। ये सारे पैरामीटर्स। और यदि हम वेलोसिटी को रेडियस के टर्म्स में लिखें तो वेलोसिटी हो जाएगा BQR/m। तो ये सारे पैरामीटर्स हम डिराइव कर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूला से, FB = FC। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है ये सब? ओके, अब ये क्लियर है। अब इसका एप्लीकेशन ही मेनली हमको समझना है। ये सब फॉर्मूला कुछ नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला बस जानकारी के लिए, काफ़ी सिंपल है ये। मगर जब समझना होता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, इन फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे और पाथ पे ही बेसिकली आते हैं। तो हम टॉपिक लिखते हैं, जनरल टॉपिक है यही, मोशन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। हम ऐसा लिखते हैं, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये टॉपिक देता हूँ मैं, एक सेकेंड। हमारा जो ये टॉपिक है बात बराबर ही है, ठीक है। पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इस पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। और यू कैन से ऐसे भी बोल सकते हो इस टॉपिक को कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उस पर किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं क्विकली। सपोज मैं XY एक्सिस आपको दूँ और मैग्नेटिक फील्ड सपोज X डायरेक्शन में है,
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मैं एक दो लाइन ही ड्रॉ करूँगा, आपको एज्यूम कर लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे थ्रू आउट द रीजन में है, ठीक है। तो ये हमारा बी नॉट है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बी नॉट आई कैप। और हमने पार्टिकल को क्या किया, ऑरिजिन पे रखा है जिसकी चार्ज क्यू है और मास एम है, और हमने वेलोसिटी दे दिया है इसको ऊपर के डायरेक्शन में वी नॉट, ठीक है। ये हमने पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिया। अब हमसे पूछा है, और ये ऑरिजिन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो इसको सॉल्व कर दो सब लोग। आपको इसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ कि इसकी एक्स वाई और जेड वैल्यू, अब एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और जेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपने ये आंसर्स आप इस तरह से मेरे को दे सकते हो, एक्सप्रेशन जो भी होगा। क्विकली एवरीबॉडी। तो मैं इजी क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। ऑलराइट एवरीबॉडी, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं 2 मिनट देता हूँ आपको। 24 हो रहा है तो 26। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पहले आपको सोचना है कि पार्टिकल मूव कैसे करेगा, किस प्लेन में मूव करेगा, ये सब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये सोचो कि पार्टिकल किस प्लेन में मूव करेगा। बता सकते हो सब लोग, पार्टिकल किस प्लेन में मूव करेगा, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड, किसी एक प्लेन में पार्टिकल मूव करेगा। एवरीवन, ओके, एक आंसर आया। बाकी लोग नहीं पढ़े हो क्या ये चैप्टर? ट्वेल्थ के चैप्टर में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, स्पेशली इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में। और ऐसे भी क्वेश्चन एक्चुअली बहुत तरीके से पूछा जाता है। इस जो मैंने जो डायग्राम बनाया है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आप बताओ इसकी मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल की, या फिर इस पार्टिकल की मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इस पार्टिकल की मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बता दो इस पार्टिकल की एक्स पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वाई पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी हमेशा, या फिर जेड पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, या फिर आपको एक टाइम इंटरवल दे दिया रहेगा। अब पूछा जाए कि इस टाइम इंटरवल में एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस टाइम इंटरवल में वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ दिया आपको थोड़ा सा और एडवांस, उससे भी थोड़ा सा एडवांस, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा 3 मिनट हो गया। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप इस पर फोर्स देख लो, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा।
एवरीबडी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ध्यान से देखोगे, वी क्रॉस बी, फोर्स जो लगेगा माइनस जेड लगेगा, जेड नहीं, आपको टू बी प्रिसाइज होना पड़ेगा। ओके, प्रिसीजन इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो जो फोर्स लग रहा है वो माइनस जेड डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ गया ये सबको? अब माइनस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? आप ध्यान से देखो, मैंने जो डायग्राम बनाया है ये डायग्राम वाई जेड प्लेन में है। हाउ माइनस जेड? अपनी राइट हैंड यूज़ करो, वी क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन निगेटिव जेड आ जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन के बारे में बता दिया आपको। वैभव, क्लियर? मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं क्वेश्चन उसी पे पूछूंगा, कोई नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछ दूंगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है, ठीक है? ऑलराइट, तो पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, थोड़ा विजुलाइज करो। मेरा पेपर कहाँ है? ओके, नोटबुक देखो आप, ये जो पेपर है ना, इधर देख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा, हाँ इधर। ये जो प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन है ये, यहाँ सब कुछ अपोजिट लिख रहा है। ये वाई जेड प्लेन है इस तरफ, तो पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहा है, वाई और जेड। और पार्टिकल की जो जेड वैल्यू है ना वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा, जेड इज़ ऑलवेज लेस देन ज़ीरो। ये फील आ रहा है जेड क्यों हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा? ऑलवेज एक्स जो होगा हमेशा ज़ीरो होगा, ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर गया ना, 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे ध्यान से, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये हमारा लाइन है वाई एक्सिस, ठीक है? तो कुछ लोग क्लियर हो गया होगा जिन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये हमारा कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। अच्छा यहीं से समझ लो, ये जो इसकी हिंज जो देख रही है ना, ये हिंज, ये मान के चलो ये जो हिंज है ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो किया तो ऐसे आधा सर्कल ऐसे ड्रॉ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, हाफ सर्कल। अब देखो दिख रहा है हाफ सर्कल और हाफ सर्कल नीचे, और ये हमारा वाई जेड प्लेन है, और ये जो एक्सिस है ये निगेटिव जेड एक्सिस है। तो पार्टिकल को मैंने यहाँ थ्रो किया, फोर्स उस पर लगा इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप देख भी सकते हो इसकी जो मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट होगी वो 2 टाइम्स रेडियस होगी। ये समझ में आ रहा है? इसकी मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट वो 2 टाइम्स रेडियस होगी। क्लियर है? यस सर। सर लास्ट पार्ट दोबारा बता दो। कौन सा मैं खुद भूल गया लास्ट पार्ट क्या है। वो जेड मैक्सिमम। हाँ जेड मैक्सिमम, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे जा रहा है ना, तो सेमी सर्कल ये पाथ ट्रेवल कर रहा है ना, सेमी सर्कुलर पाथ, आप उस डायग्राम में भी देख सकते हो। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ जो ट्रेवल करेगा तो एक डायमीटर पे पहुंच गया ना आफ्टर हाफ टाइम पीरियड। तो आफ्टर हाफ टाइम पीरियड ये 2r डिस्टेंस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यस सर। समझ में आ गया? और अब देखो इसकी मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, ध्यान से देखो। मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट ये जेड ही तो होगा ऊपर वाला, क्योंकि फोर्स किस प्लेन में लग रहा है? फोर्स जो लग रहा है किस प्लेन में लग रहा है? नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड। तो अब सर्कुलर मोशन जो होता है वो
एक प्लेनर मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन नहीं होता है। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है? 2 डायमेंशन मोशन, पढ़ा होगा शायद मोशन में, राइट। तो अब यदि फोर्स जो हमारी जेड डायरेक्शन में लग रही है, निगेटिव जेड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी हमारी वाई डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी और फोर्स उसी प्लेन में होगा ना, उसी प्लेन में सर्कुलर मोशन होता है जिस प्लेन में वेलोसिटी और फोर्स हो। समझ में आ गया गोपाल शर्मा? ठीक है, ऑल राइट। तो आप आसानी से विजुलाइज कर सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट जो होगी वो आर होगी, मैक्सिमम जेड कोऑर्डिनेट होगी -2r होगी, और y का जो रेंज होगा वो -r से r होगा, और r की वैल्यू आपको पता है, तो ये सब एक्चुअल वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और x की वैल्यू 0 होगी। तो मेरे को क्या निकालना था, हम अपने ऑब्जेक्टिव से ही भटक गए हैं, x = 0। तो ये तो हमारा फिक्स है, x हमारा 0 होगा हमेशा। अब हमको y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ठीक है। y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से यदि विजुलाइज नहीं हो रहा है तो मैं एक और एक्सिस बना लूँगा, मैं इसको y बना लूँगा और इसको -z बना लूँगा। बना सकता हूँ ना ऐसे, मतलब एक तरह से मैं विजुलाइज अब कर रहा हूँ कैसे चीज़ों को, किधर मेरी, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को पूरा सर्कल दिखेगा ना, हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन से यदि हम देखेंगे, या फिर हमारी देखने की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, तो मेरे को ऐसा पार्टिकल, ऐसा पाथ दिखेगा ना, सर्कुलर पाथ, परफेक्टली सर्कुलर पाथ दिखेगा, ऐसा कुछ टेढ़ा टाइप का नहीं दिखेगा। इतना क्लियर है सबका? इतना तो क्लियर है ना सबको? सब लोग जल्दी हाँ यस नो बोलते जाओ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी चलूँगा, क्योंकि इस तरह से रहा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना लेट करोगे समझने में तो, ठीक है। अब इसी की मैं बात कर रहा था कि ये जो नेगेटिव पे जो मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू है ना, ये 2r है, और मैक्सिमम वाई की वैल्यू है ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है। अब मेरे को क्या निकालना, मेरे को अब ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, तो हम मान के चलते हैं कि एक जनरल टाइम पे पार्टिकल p पॉइंट पे होगा, और वो कितना एंगल कवर कर लिया होगा, वो थीटा एंगल कवर कर लिया होगा, और थीटा की वैल्यू ओमेगा × t होगी, क्या हम बोल सकते हैं? और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, हमने निकाला था BQ/m। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं BQ/m × t, ये हमारा एक जनरल थीटा होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि t टाइम में वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा अपने सेंटर के अबाउट, तो हम ये लिख सकते हैं ओमेगा × t। अब हमारा सपोज थीटा है, तो यहाँ से आप क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करो। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है एक्चुअली, परपेंडिकुलर लेंथ यही तो y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट होगा y, z, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा रेडियस r है, तो y की वैल्यू हमारा r sin थीटा हो जाएगा, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखो, z हमारा ये पार्ट है, अब इसकी वैल्यू एक्चुअली होगी r - r cos थीटा। ये क्लियर है एक्सप्रेशन सब लोगों को? एवरीबडी इज क्लियर? अब r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। ये क्लियर नहीं है? नॉर्मल सर्कुलर मोशन ही तो है, पैरामीट्रिक फॉर्म वगैरह पढ़ा है ना मैथ्स में, आपका नीट है या IIT JEE है शाहबाज? साइन थीटा कैसे हुआ ये पूछ रहे हो? इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQC, इसकी लेंथ r sin थीटा नहीं होगी, ये वाला लेंथ, और इसकी लेंथ r cos थीटा नहीं होगी? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं कॉम्प्लेक्स से थोड़ा स्टार्ट किया हूँ क्वेश्चन, ताकि थोड़ा मतलब
बाकी आसान क्वेश्चन एकदम आसान लगे। वैल्यू आर होगी, हाँ y की मैक्सिमम वैल्यू आर होगी और z की मैक्सिमम वैल्यू 2r होगी निगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस नो बोल दो। ये r साइन थीटा और r माइनस आर कॉस थीटा। बुक्स वगैरह के प्रॉब्लम्स मतलब मिल जाएंगे, मगर मैं एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में और आगे भी फ्यूचर में जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। अभी तक मैंने जितना भी मतलब पढ़ाया है उसका एक तरह से समरी आपको बताता हूँ, उसमें से जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं वो करवाता हूँ। ओके, अच्छा समझ में आ गया सब लोगों को? तो अब वैल्यू अब डाल दो यहाँ पे। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू एम वी बाई बी क्यू इंटू साइन बी क्यू बाई एम इंटू टी, और z की वैल्यू हो गई एम वी बाई बी क्यू, आप कॉमन ले सकते हो, सो 1 माइनस कॉस बी क्यू बाई एम इंटू टी। क्लियर है सब लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू? अब खुद यहाँ पे देख सकते हो कि y की आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो इस फंक्शन से। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और cos की मतलब इस एक्सप्रेशन z का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए cos की वैल्यू -1 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली z की वैल्यू 2 एम वी बाई बी क्यू आ जाएगा। y की मैक्सिमम वैल्यू r होगी ना सर? हाँ r होगी। तो हम एक जनरल टाइम पे निकाल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि एक जनरल टाइम पे वो पार्टिकल यहीं पे पहुंच जाएगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा मतलब 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, तब उसकी कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट r होगी। हमेशा थोड़ी ना r होगी, y की कोऑर्डिनेट हमेशा r थोड़ी होगी। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। ऐसा ही मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसको आप सही सही करो, ठीक है? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ऑलराइट, कॉपी कर लिया सब लोगों ने? ओके, एक एक्स वाई एक्सिस बनाया जाए और ओरिजिन पे चार्ज पार्टिकल को रखा जाए क्यू और एम। इस बार मैग्नेटिक फील्ड में दे रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में। बी नॉट जे कैप, ठीक है? और मैंने वेलोसिटी दे दिया एक जेड एक्सिस भी बना दूं। इस बार मैं पार्टिकल को अंदर की तरफ वेलोसिटी दे दिया वी नॉट, मतलब यहाँ पे मैं एक्चुअल वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ माइनस वी नॉट के कैप। फाइंड द कोऑर्डिनेट of charged particle as a function of time। चलो सॉल्व कर दो सब लोग, x y z इसकी वैल्यू निकाल दो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। डू इट फास्ट एवरीवन। हमने पार्टिकल को ओरिजिन पे रखा है इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे। कभी पूछ लेता है x मैक्स निकाल दो, x मैक्स वैल्यू, y मैक्स वैल्यू, z मैक्स वैल्यू, ये सब भी कर सकते हैं कैलकुलेट। ये कॉन्सेप्ट पे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इसके तहत बाकी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व हो जाएंगे यदि ये क्वेश्चन समझ जाते हो तो। क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, लेट मी सी।
अब बस आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, ये सब के टर्म्स में आप आंसर दे दो, ठीक है सब लोग। ऐसा ही कुछ आंसर आएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, बता सकते हो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो आएगा? क्योंकि किसी एक प्लेन में ये पार्टिकल मूव करेगा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो आएगा? तो एक वाई बोल रहा है, एक एक्स बोल रहा है। ओके, दो लोग एक्स बोल रहे हैं। श्योर हो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा? चलो अब दो लोग, तीन लोग वाई बोल रहे हैं, चेंज कर दिया। अच्छा अब देख लो, पहले फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो। तो V क्रॉस B, मेरा तो फोर्स, मेरा जो थंब आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? ऐसे दिखेगा आपको, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? पॉजिटिव x। तो हमारा जो फोर्स है ऐसे लग रहा है। तो फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमेशा सर्कुलर मोशन होगा, मतलब उसी प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन का प्लेन कैसे निकालते हैं? जिस प्लेन में फोर्स और वेलोसिटी दोनों हो। हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? ऑलवेज विच कोऑर्डिनेट विल बी जीरो? y हमेशा जीरो होगा। और पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा होगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा होगा एवरीबॉडी? पार्टिकल का प्लेन होगा, फिर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। पार्टिकल किस प्लेन में मूव कर रहा होगा? एक्स जेड प्लेन में ना। पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, ग्राउंड पे मान के चलो, ठीक है। पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा होगा, और पार्टिकल की कौन सी कोऑर्डिनेट जीरो होगी? वाई कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज भी जीरो। तो हमारा वाई का तो फंक्शन आ गया वाई इक्वल्स टू जीरो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमारा एक्स और जेड निकालना है। तो एक्स और जेड निकालने के लिए आपको इस पार्टिकल को कहाँ से देखना पड़ेगा? आप ऊपर से देखो, अपनी आँख आप ऊपर डालो, यहाँ से ऑब्जर्व करो पार्टिकल को, तो आपको बिल्कुल पूरा सर्कुलर पाथ दिखेगा। अब ऐसे ऑब्जर्व नहीं करो, आप थोड़ा इस तरह से ऑब्जर्व करो ताकि आपका पार्टिकल का पाथ पूरा सर्कुलर मोशन दिखे। और ऑब्जर्व करते हुए उसका डायग्राम बना लो और एंगल ड्रॉ कर लो और फिर निकाल लो। क्लियर एवरीबॉडी? बिल्कुल सेम स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। आपको बस रिप्लिकेट करना है चीज़ों को थोड़ा दिमाग लगाते हुए। हाउ टू फाइंड प्लेन, मैंने बताया ना, प्लेन सर्कुलर मोशन का प्लेन निकालने के लिए वेलोसिटी और फोर्स जिस प्लेन में होगी उसी प्लेन में सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी, तो फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में और वेलोसिटी हमारा माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो प्लेन हमारा एक्स जेड प्लेन होगा। ओके, तो एक्स और जेड की वैल्यू क्विकली। सो दो प्रॉब्लम्स में 45 मिनट्स हो गया। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ले लिया हूँ, इसीलिए डिफ़िकल्ट तो नहीं है कहा जाएगा। जो लोग जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इवन नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब आना चाहिए। ओके, मैं ही लिख देता हूँ क्विकली, आप लोगों को टाइम लग रहा है। तो मैं जो डायग्राम बनाऊँगा, मैं एक्स जेड प्लेन का एक डायग्राम बनाऊँगा यहाँ पे। एक्स और जेड मेरे को ऊपर से दिखेगा। ऊपर हमारा ये मेक श्योर ये आपको निगेटिव बनाना है, ये निगेटिव जेड है और ये पॉजिटिव एक्स है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ मिस्टेक नहीं किया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखा है ना हमने, ये हमने थोड़ा ध्यान नहीं करा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, जो जेड की वैल्यू होगा ना निगेटिव होगी, तो ये जो हमारा है ना फाइनल आंसर, इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? तो निगेटिव का ध्यान रखना है। आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, तो सोचना है आपको।
ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ ड्रॉ करूँगा जो कि हमेशा पॉजिटिव एक्स होगा। तो मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। ऑल राइट एवरीवन, और पार्टिकल यहाँ पे सपोज P पॉइंट पे है और सेंटर से ये एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ सेम प्रोसेस, इसकी वैल्यू r cos थीटा और इसकी वैल्यू r sin थीटा। तो हमारा ये नेगेटिव z है, तो z की वैल्यू हो जाएगी माइनस r sin थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा t, और ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, राइट। और x की वैल्यू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। और y की वैल्यू 0। तो ये हमारा x y z आ गया।